Good morning, friends. Today we are going to continue with chapter 3, vocabulary. The previous lecture we have completed with synonyms, antonyms, connotations, and today we are going to start with roots of words. Now you are aware with what is a root. Plant के roots होते हैं और उस पे से plant जो है आगे बढ़ता है. तो उसी तरह roots of words यानी एक पर्टिकुलर रूट जहाँ से वर्ड्स डेवलप हुए. इंग्लिश वर्ड हैव बीन डेवलप्ड एंड इंग्लिश लैंग्वेज हैव बीन डेवलप्ड. यू मे नॉट बी अवेयर बट इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक वर्ड्स. तो वहाँ उनका रूट है और वहाँ से वो बिल्टअप हुआ है. तो रूट्स क्या होते हैं? रूट्स आर नथिंग बट के व्हाट दे हैव गिवन. जस्ट आई एम रीडिंग दैट. In English grammar, a root is a word or a word part from which other words grow, usually through the addition or of prefixes and suffixes. They are called as affix. Prefixes, affixes, suffixes. एक particular words जिसके आगे कुछ additional words add किए, those are called as a prefix. और कुछ particular root जिसके आगे, that means पहले या उसके बाद में, पहले अगर आप कुछ वर्ड्स ऐड करते हो तो they are called as a prefix, और उसके आगे बाद में अगर कुछ वर्ड्स आप ऐड करते हो तो they are called as a suffix. preceding and succeeding जैसा बोला जाता है. preceding यानी पहले, succeeding यानी आगे. उसी तरह रूट्स के अगर पहले प्रीफिक्स ऐड किया या फिर रूट्स के अगर आगे सफिक्स ऐड किया तो उससे कुछ एडिशनल वर्ड्स डिराइव होते हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज जो डेवलप हुआ है वो लैटिन और ग्रीक वर्ड से इट हैज बीन डेवलप, और आगे वर्ड्स बढ़ते गए. नंबर ऑफ वर्ड्स आगे आगे डेवलप होते गए और ऐसे नंबर ऑफ वर्ड्स अंडर इंग्लिश लैंग्वेज हैज बीन डेवलप. इट इज द हार्ट ऑफ द वर्ड. रूट इज नथिंग बट अ हार्ट ऑफ द वर्ड. एग्जाम्पल, द रूट ऑफ द वर्ड रनिंग इज रन. व्हेन यू strip off the affixes from the words, what is left with slight spelling modification is the root. Even though the root is the basis of new word, it may not typically form a stand-alone word on its own. For example, the word reject is made up of prefix re and the Latin root ject, which is not a stand-alone word. यहाँ पे I told you that in English language the words have been formed from a Latin and a Greek words. तो उन्हें roots बोला जाता है क्योंकि वो उसके फाउंडर है. तो इंग्लिश के अंदर अगर आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसको जो कुछ रूट्स ऐसे हैं, अगर उसको इंडिविजुअली प्रोनाउंस किया तो उसका कुछ भी मीनिंग नहीं निकलता है क्योंकि उसका लैटिन मीनिंग है, इंग्लिश मीनिंग कुछ नहीं है. तो उसमें कुछ एडिशनल प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस ऐड करना जरूरी है. जैसा एक एग्जांपल दिया है रिजेक्ट. तो रिजेक्ट हैज बीन डेवलप फ्रॉम अ लैटिन वर्ड जेक्ट, लैटिन रूट जेक्ट. तो जेक्ट का इंग्लिश में ऐसा कुछ मीनिंग नहीं है जब तक उसके आगे अगर आप प्रीफिक्स ऐड नहीं करते हो. री आर ई जब आपने JECT को ऐड किया तो एक वर्ड डेवलप होगा दैट इज कॉल्ड एज अ रिजेक्ट. दैट इज अ रिजेक्शन. किसी को ठुकराना, दैट इज कॉल्ड एज अ रिजेक्ट. What it says, understanding the meaning of common word roots can help us deduce the meaning of new words. Deduce का meaning क्या है? Conclude, derive करना. Deduce means conclude or to arrive at something that we encounter. Henceforth, by elimination technique, students can make the right selection of the answer. But be careful as the root words can have more than one meaning. In addition, words that look similar may be derived from a different roots. So when you meet up with a new word, be sure to rely on dictionary or check its definition. एक root से several words can be derived और सबके meaning अलग-अलग हो सकते हैं. If we wish to hone our vocabulary skill, hone का meaning क्या है? Sharpen. If we wish to sharpen our vocabulary skills, then we must study roots. Knowledge of the root and its usage will improve our vocabulary exponentially
Exponentially means sufficiently, becoming more and more rapid. That is called as an exponentially. Becoming more and more rapid, जो आप fluent जिसको अपन बोलते हैं. If we know one root, any word with that root would be cognizant. Cognizant का meaning है aware. So typically we don't have to sit and mug up the entire word list. The learning will happen itself. So if you have a knowledge of a root, तो उससे आप n number of words के meaning निकाल सकते हैं. तो what is important is a root. Given below is the detailed list of roots, its meaning and the possible words made of the roots. देखिए किस तरीके से roots के meaning दिए गए और उसके आगे या पीछे affixes ऐड करने से किस तरीके से एक new word derive होता है. तो root आप जब तक आपको पता नहीं, तो root का meaning अगर पता है तो आपको जो भी वर्ड्स उससे रिलेटेड होंगे आपको ये समझ में आएगा कि ये रूट से रिलेटेड है, उसके मीनिंग से रिलेटेड है. एक एग्जांपल विल टेक एरो. एरो का मीनिंग क्या है? एयर. अब ये एरो से रिलेटेड जो भी वर्ड्स फॉर्म होगा अफिक्सेस ऐड करने से, तो आपको ये पता चलेगा कि ये एयर से रिलेटेड है. एग्जांपल एरोप्लेन. देखिए एरो, एरो इज अ रूट, उसके आगे आपने प्लान ऐड किया, यानी सफिक्स ऐड किया, तो वो हो गया व्हीकल फ्लाइज इन द एयर, रिलेटेड विथ एयर. देन एरोस्पेस, एयर इन द स्पेस. एरेट, गिव वे टू एयर. एरियल, एयर रिलेटेड लाइक एक्ट्स, एनिमल. तो ये क्या हो गया? एरो यानी एक रूट हो गया और उसका मीनिंग क्या है? एयर. तो एरो से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स डिराइव होंगे बाय एडिंग द सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस, तो आपको ये पता चलेंगे कि समथिंग इज रिलेटेड विथ एयर. तो आपको इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो रूट, अगर आपको रूट का मीनिंग पता है तो उससे रिलेटेड जो भी वर्ड डिराइव होगा तो उसका मीनिंग भी आप इजीली पता लगा सकते हो. एंट्रोप का मीनिंग है मैन. एंट्रोपोलॉजी, यहाँ पे आपने सफिक्स ऐड किया पोलॉजी. उसी तरह फिलैंथ्रोपी, यहाँ पे आपने प्रीफिक्स ऐड किया, बराबर. थ्रोपो. एंथ्रोपी, यहाँ पे क्या बोला गया? एंथ्रोप यानी इट्स रिलेटेड विथ मैन. तो फिलैंथ्रोपी, यहाँ पे PHIL आपने ऐड किया है, ये आपने ऐड किया है प्रीफिक्स ऐड किया. देन मिसेंथ्रोप, यहाँ पे भी आपने प्रीफिक्स ऐड किया. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यहाँ पे आपने सफिक्स ऐड किया. इसके मीनिंग्स देख लेते हैं. एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग क्या है? स्टडी ऑफ मैन. फिलैंथ्रोपी का मीनिंग क्या है? लव ऑफ मैनकाइंड. That means everything is related with man, बराबर. मिसेंथ्रोप का मीनिंग क्या है? हेटर ऑफ मैनकाइंड. फिलैंथ्रोपी इज लवर ऑफ मैनकाइंड, दैट इज ह्यूमैनिटी जिसको अपन बोलते हैं. मिसेंथ्रोपी यानी द वन हु हेट्स मैनकाइंड. एंथ्रोपोमॉर्फिज्म का मीनिंग क्या है? एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स टू अ गॉड, एनिमल और ऑब्जेक्ट. तो देखिए आपको अगर एंथ्रोप एक रूट है, उसका मीनिंग पता है, तो वो वर्ड जिसमें भी ऐड होगा आपको पता लगेगा इट इज समथिंग रिलेटेड विथ मैन. आर्क का मीनिंग है फर्स्ट, प्राइम और रूलर. आर्क बिशॉप, हेड ऑफ द चर्च. मोनार्क, किंग. आर्कियोलॉजी, नाउ यहाँ देखिए आर्कियोलॉजी, आर्क का मीनिंग क्या है? प्राइम, फर्स्ट, स्टडी ऑफ फर्स्ट और ओरिजिन ऑफ थिंग्स, बराबर. बिब्लियो का मीनिंग है बुक. बायो का मीनिंग है लाइफ. सेंट का मीनिंग है 100, अपन बोलते हैं ना परसेंट, पर 100, बराबर. तो यहाँ पे देखिए सेंट का मीनिंग है 100. बिब्लियो का मीनिंग क्या है? बुक. बिब्लियोफाइल, बिब्लियोग्राफी, बाइबल. लवर ऑफ बुक, राइटिंग्स ऑफ बुक और लिस्ट ऑफ बुक, बिब्लियोग्राफी. बाइबल, मेन बुक. देन यू हैव बायो रिलेटेड विथ लाइफ, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ. Biography, writing of life. Biosphere, life around us. Cent, that is 100. Centenary, 100 years anniversary. Percent, per 100. Century, 100 years. Site का important meaning क्या है? Kill, very very important word. Site, patricide.
that means to kill father, matricide to kill mother and so on. क्रेसी, डेमोक्रेसी यानी रूल, डेमोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मीनिंग है रूल ऑफ द पीपल, एरिस्टोक्रेसी का मीनिंग है रूल बाय द एलाइट, एलाइट यानी द किंग वगैरह, जो एक रॉयल क्लास होता है उसको बोलते हैं एलाइट क्लास. देन यू हैव जेरोंटोक्रेसी, रूल्ड बाय ओल्ड पीपल. देन यू हैव डम, डर्मेटोलॉजी जिसको अपन बोलते हो रिलेटेड विथ स्किन, डर्मेटोलॉजी. देन यू हैव अ पेकिडम, that is you have prefix you have added to dumb. Epidermal, again you have added a prefix, that is the outer layer of skin. Then you have a ego, that is self, egoist, egotist, alter ego, that is preoccupied with oneself, egoist का meaning है. Then eu, that is good, eulogize, euphony, euthanasia, to praise pleasant or good music. That is whenever eu is added it means something related good, अच्छा चीज जो है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ रहेगा. तो eu is also a root, उसका मीनिंग क्या है? गुड. एक्री का मीनिंग है बैड, बिटर. एक्री दैट मीन्स बिटर. एक्रीमोनी, एक्रीड, फीलिंग ऑफ हेट्रेड. एक्रीमोनियस एटीट्यूड जिसको अपन बोलते थे, एक्रीमोनियस एटीट्यूड का मीनिंग है रिवेंजफुल या फिर हेटफुल एटीट्यूड, दैट इज कॉल्ड एज एक्री. तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रूट्स, जस्ट गो थ्रू दैट. देखिए टेली का मीनिंग क्या है? फार, जनरली यूज विद टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीपैथी. ये हो गया आपका. पैथोस का मीनिंग है इमोशंस. चेक का मीनिंग है थ्रू आउट, रिजेक्ट जनरली अपन यूज करते हो. These are some of the important roots. तो roots क्या होते हैं? Roots का जहां से word derive होता है तो that is called as a root. अभी यहाँ पे क्या बोला है देखिए, make a new word combining the root word and one of the following prefixes. Each is used twice. अब देखिए यहाँ पे place दिया गया है और इसके आगे आपको एक प्रीफिक्स ऐड करना है, कुछ एडिशनल अल्फाबेट्स ऐड करना है और एक न्यू वर्ड बनाना है जो मीनिंग जनरेट करे. अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, प्लेस. तो जनरल क्या यूज होगा यहाँ पे? प्लेस का मीनिंग पहले क्या है? प्लेस का मीनिंग है आपका लोकेशन, बराबर. लोकेशन प्लेस का मीनिंग है. तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? यू विल यूज डिस्प्लेस, बराबर. कोड का मीनिंग क्या है? सीक्रेट लैंग्वेज इज कोड. सीक्रेट लैंग्वेज, और इट कैन कॉल इट एज अ सिस्टम ऑफ वर्ड. तो ये हो गया आपका कोड. सीक्रेट लैंग्वेज को डिकोड करना, तो इसको क्या बोलेंगे? डिकोड. देन वेंट का मीनिंग है ओपनिंग. जैसा पानी किसी ओपनिंग से निकलता है तो वो ओपनिंग उसको बोलते हैं वेंट. और टू कम आउट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यू कैन यूज वेंट यानी अलाउ करना, ओपन करना. और इसको रोकने को क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? प्रिवेंट. सोशल का मीनिंग क्या है? जो कम्युनिटी में मूव होता है, एसोसिएट. और यू कैन कॉल इट एज अ कंपेनियन, जो सोसाइटी को लव करता है, सोशल एटीट्यूड जिसका रहता है. इसका क्या आएगा? इसका ऑपोजिट. यहाँ पे क्या बोलेंगे? एंटी सोशल. देखिए यहाँ पे वर्ड है एंटी सोशल. देन ओबे, ओबे यानी रिस्पेक्ट, किसी को रिस्पेक्ट देना या अटेंशन देना. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? ओबे, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट. ओबे, डिसओबे. यहाँ पे क्या बोलेंगे? डिसओबे. ये सब लैटिन वर्ड है जनरल. डिसओबे. देन एक्ट का मीनिंग क्या है? टू डू समथिंग. यहाँ पे क्या बोलेंगे? एक्ट को टी एक्ट, ओवर एक्ट, एंटी एक्ट, प्री एक्ट, डिस एक्ट. तो ओवर एक्ट यहाँ पे ये वर्ड सुटेबल है. सेप्टिक का मीनिंग क्या है? खराब हो जाना, रोटेन. और यू कैन कॉल इट एज इन्फेक्टेड. तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? जो खराब हो गया उसका ऑपोजिट एंटीसेप्टिक. देन एज क्या बोलेंगे? एज का मीनिंग क्या है? कि एज हो जाना. तो यू कैन कॉल इट एज, यू आर अवेयर विथ व्हाट इज एन एज.
यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड यूज होगा, डी एज, ओवर एज, एंटी एज, प्री एज, डिस एज। तो यहाँ पे राइट वर्ड विल बी ओवर एज, बराबर। तो ये आपके रूट्स है, रूट्स के आगे आप प्रीफिक्स ऐड कर रहे हैं तो एक नया मीनिंग जनरेट हो रहा है या ऑपोजिट मीनिंग जनरेट हो रहा है। पेंड का मीनिंग है हैंग, स्टेट, एज का मीनिंग यू कैन कॉल इट स्टेट ऑफ, और पेंड का मीनिंग है हैंग ऑन, हैंग, किसी पे हैंग होना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप, डिपेंड, बराबर। देन सर्व का मीनिंग क्या है कि परफॉर्म ड्यूटीज, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्व, और यू कैन कॉल इट एज सर्व समवन। यहाँ पे राइट वर्ड क्या रहेगा, डिसर्व, ओवरसर्व, एंटीसर्व, प्रिजर्व। प्रिजर्व यानी सर्व नहीं करना, प्रिजर्व करना, उसको आप एक जगह प्रिजर्व करके रखते हो, फ्रिज में आप प्रिजर्व करके रखते हो कुछ चीज, तो उसको बोलेंगे यहाँ पे सर्व को आपने प्रीफिक्स लगाया प्री, तो वो हो गया न्यू वर्ड प्रिजर्व। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन रूट्स। अब ये रूट्स के आपको मीनिंग बताने का बोल रहा है। ड्यू का मीनिंग क्या है, इट्स सिंपल, ड्यू यानी दो, या आ गया टू। AUD इज समवॉट रिलेटेड विथ ऑडियो, इसको कैसे रिलेट करेंगे आप, ऑडियो। तो यहाँ पे ऑडियो क्या है, समथिंग इज साउंड, दैट इज ऑडियो। बिब्लियो इज नथिंग वर्ड, उन्होंने बताया बिब्लियो इज रिलेटेड विथ व्हाट, बिब्लियो इज रिलेटेड विथ समवॉट बुक, तो यहाँ पे राइट वर्ड कौन सा रहेगा, बुक। देन यू हैव CED, CED को यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सीड का मीनिंग, they have what does seed means, seed means to go somewhere, proceed अपन बोलते हैं ना, we call it as proceed, बराबर। तो यहाँ पे वो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो। तो इसका यहाँ पे क्या आएगा, सीड का मीनिंग क्या आएगा, टू गो। देन ईगो आप खुद से रिलेटेड, प्राउड जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेल्फ। तो इन सब के आपको ये रूट्स के मीनिंग्स यू हैव टू डिराइव ओवर हियर। देन कम प्रीफिक्स एंड सफिक्स, वेरी इजी। आई टोल्ड यू दैट के रूट्स के अगर पहले कुछ एडिशनल वर्ड्स अल्फाबेट्स आप लगाते हो उसको प्रीफिक्स बोलेंगे, और उसके आगे अगर कुछ लगाते हो सक्सीडिंग तो उसको सफिक्स बोलेंगे। तो प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग, इसी से डिराइव हुआ है आपका प्रीफिक्स और सफिक्स। तो क्या बोल रहा है, देखिए अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट अपीयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड changes the word's original meaning. Suffix is a letter or a group of letters that is usually added onto the end of the word to change the way a word fits into sentence grammatically. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आगे या पीछे अगर आप कोई वर्ड्स लगाते हो तो उसको आप बोलोगे अफिक्सेस, आगे लगाते हो तो उस अफिक्स को बोलेंगे प्रीफिक्स, पीछे लगाते हो तो आप बोलोगे उसको सफिक्स। English vocabulary is enormous and is growing steadily. A majority of new words introduced to the language and a great percentage of words used to express abstract ideas are complex words. These words are made up of simple word part, affixes, that is suffix or prefix, and roots that have their own definition and can be understood in context without exact definition. By slowly and steadily studying the most prominent prefix and suffix, you can acquire a vocabulary that is far greater than the sum of its part. तो अभी तक अपन ने रूट का मीनिंग देखा, अब प्रीफिक्स और सफिक्स का मीनिंग देखते हैं। तो ये प्रीफिक्स और सफिक्स अगर रूट्स को ऐड होते हैं तो किस तरीके से आपका न्यू वर्ड्स डिराइव होता है। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, वन बाय वन विल जस्ट गो थ्रू दैट। क्या बोला है, सबसे पहले एम्बी, एम्फी, इसका मीनिंग क्या है, एम्बी और एम्फी का मीनिंग क्या है, बोथ। कौन से वर्ड दिए, देखिए एम्बिग्यूअस, एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्फीबियन, एम्फीथिएटर। कुछ चीजों के मैं आपको यहाँ पे मीनिंग बताता हूँ। एम्बिग्यूअस, यू आर अवेयर व्हाट इज एन एम्बिग्यूअस, टू मीनिंग जिसको अपन बोलते हो, दो मीनिंग जिसके होते हैं, जो क्लियर नहीं होता है। एम्बिडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या है, एम्बिडेक्स्ट्रस का मीनिंग क्या है, जो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों को इस्तेमाल कर सकता है। एबल टू यूज बोथ हैंड्स,
इक्वली वेल, इसको आप बोलते हो एम्बिडेक्स्ट्रस। एम्फीबियन, यू आर अवेयर हु इज एन एम्फीबियन, जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकता है, एम्फीबियन। एम्फी थिएटर क्या होता है? एम्फी थिएटर होता है एक बड़ा का बड़ा गोल बिल्डिंग जिसमें अंदर एक स्टेडियम के जैसा होता है, लोगों को बैठने की वहां पे जगह रहती है और नीचे परफॉर्म करते हैं। ड्रामा के लिए वो जगह यूज होती है, स्पोर्ट इवेंट्स के लिए वो जगह यूज होती है। जनरली आप रोमन फाइटर्स, रोमन स्पोर्ट्स अगर आप देखेंगे, इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो वहां पे आपको वो बिल्डिंग दिखेगा। तो ये इसे बोला जाता है एम्फी थिएटर। तो एम्बी या एम्फी का मीनिंग क्या है? बोथ, यानी दो जगह, बोथ यूज उसके बताए गए। तो यहाँ पे देखिए एम्बिग्यूअस भी दो है, एम्बिडेक्स्ट्रस भी दो है, एम्फीबियन भी दो है और एम्फी थिएटर भी दो है, जहाँ पे ड्रामा या स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं। अ का मीनिंग क्या है? अगर आप एज अ प्रीफिक्स लगा रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है? विदाउट। अ टिपिकल, अ पैटी, अ बैक। अटिपिकल का मीनिंग क्या है? अनयूजुअल। इसका मीनिंग क्या है? अनयूजुअल, बराबर। अपैथी का मीनिंग क्या है? अपैथी मीनिंग लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इसे आप बोलोगे अपैथी। अबैक का मीनिंग क्या है? अबैक का मीनिंग ये है बैकवर्ड, यू विल कॉल इट एज अबैक, बराबर। तो ये हो गया आपका विदाउट, बराबर। देन यू हैव एंटी। एंटी का मीनिंग क्या है? बिफोर। एंटीसीडेंट, एंटीडाइल्यूवियन। एंटीडाइल्यूवियन का मीनिंग क्या है? बिफोर द फ्लड। एंटीडाइल्यूवियन का मीनिंग क्या है? बिफोर द फ्लड। देन यू हैव बेनी। बेनी का मीनिंग क्या है? गुड। बेनिवलेंट। बेनिवलेंट का मीनिंग क्या है? काइंड। देन यू हैव बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन का मीनिंग है ब्लेसिंग्स। बेनाइन का मीनिंग क्या है? जेंटल, एंड काइंड इज बेनाइन। तो बेनिवलेंट इज समथिंग काइंड, बेनेडिक्शन का मीनिंग है ब्लेसिंग्स, बेनाइन का मीनिंग है जेंटल और काइंड, उसका भी मीनिंग होता है आपका काइंड। देन यू हैव बाय, दैट इज टू। बाय का मीनिंग क्या है? टू। बाइसिकल, दो चक्के। बाइकैमरल, बाइकैमरल having two chambers, two parts, that is called as a bicameral. Then you have biannual, that is also related with two, occurring twice a year is called as a biannual. यहाँ पे bi का meaning क्या है? Twice, two. तो biannual का meaning क्या है? Annual means year, biannual means twice a year. Then you have circum, that means around, circumference यानी around the circle. Then you have circumlocution, around the words, and many words you use, unnecessary words, that is called as a circumlocution. Then you have circumspect, that is careful, that is called as a circumspect. तो circumference का meaning क्या है? Around a circle. Circumlocution का meaning क्या है? Many words, around the words, आप घुमा फिरा के बात कर रहे हो, unnecessary words. Circumspect का meaning क्या है? कि very careful और careful. Then die का meaning again it is two. बाय का मीनिंग भी टू है और डाई का मीनिंग भी टू है, बराबर। डाइकोटोमी, डाययूनल, डायलेमा। तो यहाँ पे डाइकोटोमी का मीनिंग क्या है? डिवीजन ऑफ टू थिंग्स। डिवीजन ऑफ टू थिंग्स इज डाइकोटोमी। डायऊनल का मीनिंग क्या है? हैपनिंग ड्यूरिंग द डे। happening during the day. is called as a diurnal. डायलेमा का मीनिंग क्या है? कंफ्यूजन। डायलेमा में है, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई मीन डायलेमा वेदर टू ज्वाइन सीए और आई शुड टेक अ साइंस, कॉमर्स और साइंस, डायलेमा। तो in such a way they have given the meaning of all these prefix. Just go through it. You have epi, that is on, upon, over. Then intra, that is within. They have given inter, that means across. You have intra or inter, generally you use these words. Intra source, inter source, बराबर।
तो इंट्रा यानी उनके बीच में, और इंटर यानी एक दूसरे से। इंटर स्टेट, वन स्टेट टू अनदर। इंट्रा स्टेट दैट मीन्स विद इन द स्टेट। तो ये सब मीनिंग उन्होंने आपको प्रीफिक्स के दिए, जस्ट गो थ्रू दैट। इन द सिमिलर मैनर दे हैव गिवन द मीनिंग ऑफ सफिक्स। सफिक्स यानी क्या? सक्सीडिंग, जो आपके रूट के आगे लगता है, तो दे आर कॉल्ड एज अ सफिक्स। क्या बोला गया है? देखिए, एबल, एबल you are aware with what is a able? He is a able person, that means can be done. So capable, readable, convertible. Then you have a SE or C, office of, state of condition, infancy, privacy or agency, state of condition, infancy. infancy किसको यूज करते हैं? जो छोटा होता है, जिसको infant है, जिसको पता नहीं है, infancy. privacy, उसी तरह age, एज में क्या दिया हुआ है? देखिए, एक्शन और प्रोसेस, पिलग्रिमेज, बॉन्डेज, पिल्फरेज। पिल्फरेज यानी छोटी छोटी चोरी करना, दैट इज कॉल्ड एज अ पिल्फरेज। देन यू हैव एरियन, दैट इज अ पर्सन। एग्रेरियन, लाइब्रेरियन, ग्रामेरियन, दे आर कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक पर्सन। लाइब्रेरियन इज रिलेटेड विथ लाइब्रेरी। देन यू हैव एशन, दैट इज अ स्टेट ऑफ। Refrigeration, occupation, irritation. So these are some of the important suffix which if added to a root it will give rise to a new word. Just go through all this. You have a ship, that is a state of, again, friendship, censorship, hardship. Then you have a wise, by means of, इसका meaning clockwise, otherwise, lengthwise. So this is how they have given the meaning of suffix. तो roots जो एक पर्टिकुलर वर्ड जिससे न्यू वर्ड डिराइव हुआ है, जनरली दीज आर ग्रीक एंड लैटिन रूट्स, जहां से इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिराइव। तो उसके आगे आप कुछ एडिशनल अल्फाबेट्स, प्रीफिक्स, या उसके पीछे अगर एडिशनल अल्फाबेट, दे आर सफिक्स एडेड, तो इट गिव राइज टू अ न्यू वर्ड, बराबर। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड आप डिराइव कर सकते हो, और ये प्रैक्टिस कब होगा? बाय रीडिंग एंड राइटिंग। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्सरसाइज सॉल्व करते, यूज अ प्रीफिक्स टू फाइंड द ऑपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे रैप का मीनिंग क्या है? कवर करना, किसी चीज को कवर करना। तो इसका ऑपोजिट क्या आएगा यहाँ पे? अनरैप। अनरैप, बराबर। कनेक्ट, डिसकनेक्ट। behave, misbehave, very easy. Fold, unfold. Spell, misspell. This is how the opposite words, by adding certain prefix, you have made it an opposite word. Complete the following sentences by using the appropriate form of word given in the bracket. Add affix or a suffix. तो ये वर्ड्स दिए हुए, ये वर्ड्स के पहले या बाद में कुछ एडिशनल अल्फाबेट्स आपको ऐड करना है और ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। द टीम ही सपोर्टेड वाज एबल टू विन द चैंपियनशिप। यू कैन कॉल ओवर हियर चैंपियनशिप। चैंपियन है आपका नाउन, सॉरी चैंपियन है आपका एडजेक्टिव, और चैंपियनशिप क्या हो गया? इसके आगे क्या वर्ड ऐड करेंगे आप? शिप। तो आपको न्यू वर्ड मिलेगा। चैंपियनशिप, बराबर। तो आपने इस तरीके से ये वर्ड, तो चैंपियनशिप आपका हो गया नाउन, और चैंपियन क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव में आपने कुछ सफिक्स ऐड किए, तो क्या बन गया आपका? चैंपियनशिप। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या आएगा? चैंपियनशिप। देन यू हैव आई थिंक दैट यू शुड डैश योर डिसीजन, इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। आई थिंक दैट यू शुड डैश योर डिसीजन, इट मे नॉट बी बेस्ट थिंग टू डू। तो कंसिडर को आपको यहाँ यूज करना है। तो वो क्या बोल रहा है? आप आपके डिसीजन को क्या करो? कुछ सोचो, फिर से सोचो। इट मे नॉट बी द बेस्ट थिंग टू डू। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे? कंसिडर क्या यूज होगा? कंसिडर का मीनिंग क्या है? कोई चीज को सोचना। तो यहाँ पे आपको वो बोल रहा है
सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड करो तो यहाँ पे वी विल ऐड अ प्रीफिक्स, तो करेक्ट वर्ड विल बी रिकंसीडर. देन यू हैव CEO has been responsible for many dash decision. Popular, रिस्पॉन्सिबल यानी आप उसको कुछ चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, नेगेटिव टोन है आपका, तो यहाँ पे पॉपुलर डिसीजन नहीं हो सकता है, यू कैन कॉल इट एज अनपॉपुलर, क्योंकि यहाँ पे आपका टोन नेगेटिव है यानी उसने कुछ गलत डिसीजन लिए, तो हियर यू कैन कॉल इट एज अनपॉपुलर. His dash comment made him disliked by the female employees. उसके कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जो फीमेल एम्प्लॉइज को अच्छे नहीं लगे. सेक्स यहाँ पे यूज करते हैं सेक्सिस्ट रिमार्क. Dash of speech and belief is extremely important for the health of an individual. Dash of speech, freedom of speech. Some TV shows are completely dash for children. They must not watch them. Suitable, इसका opposite क्या आएगा? Unsuitable. टोन क्या है? नेगेटिव टोन है, unsuitable. The party was dash. Everything went wrong. कुछ तो भी गलत हुआ है. Party was dash. वर्ड कौन सा यूज करना है? Disaster. तो यहाँ पे क्या आएगा? Disastrous. They have to dash the lion before they could catch it. जनरली ये जो जंगली जानवर होते हैं उनको इंजेक्शन दिया जाता है ताकि वो उनका बिहेवियर शांत हो जाए, वो एक बेहोश हो जाए और फिर उनको आप उन पे काबू पा सके. तो ट्रैंक्यूल का करेक्ट वर्ड यहाँ पे क्या होगा? ट्रैंक्यूलाइज. ट्रैंक्यूलाइज, शांत करना जिसको बोलते हैं. He needed to dash the temperature. He needed to dash the temperature. Regular यूज करना है तो क्या आएगा? He needed to regulate, control the temperature. Regulate, control. You need a dash of motivation, organization, revision to learn English. You need a dash. combine को यूज करना है तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन. देखा कितना इजी है. रूट्स को यू कैन ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स एंड यू कैन कम अप विथ अ न्यू वर्ड्स. तो इन दिस मैनर एग्जामिनेशन के अंदर इस तरीके की एक्सरसाइज आपको आएंगी जो काफी इजी है और इसमें आउट ऑफ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो. अब आते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, फ्रेजल वर्ब्स. फ्रेजल वर्ब्स, फ्रेज क्या होता है? वी हैव सीन इन चैप्टर 2. फ्रेज इज नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स that give you some meaning but not a complete meaning. तो यहाँ पे phrasal verbs क्या होता है? We'll see that a phrasal verb is also a group of words that function as a verb. It consists of a verb that is combined with a preposition or adverb or both. तो यहाँ पे phrasal verb किसको बोलेंगे? अगर वो किसी preposition या adverb के साथ अगर आता है या दोनों के साथ आता है तो उसको आप बोलोगे phrasal verb. बराबर. क्या है? द मीनिंग ऑफ फ्रेजल वर्ब इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ इट्स सेपरेट पार्ट्स. अगर उन वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब को अलग अलग यूज किया तो उनका मीनिंग कुछ और निकलेगा, लेकिन अगर उनको एक ज्वाइन कर दिया गया तो उससे एक न्यू मीनिंग तैयार हो जाएगा. द पार्टिकल दैट इज अ प्रीपोजिशन और अ एडवर्ब कैन चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब कंप्लीटली. फॉर एग्जाम्पल पास्ट अवे, उसका मीनिंग क्या है? पास्ट का मीनिंग अलग है, अवे का मीनिंग अलग है, लेकिन ये दोनों को जब आप ऐड कर रहे हो तो इससे न्यू वर्ड डिराइव हो रहा है, पास अवे, और उसका मीनिंग क्या निकल रहा है? डाई. पास आउट, लूज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाना. पास अप, डिक्लाइन एंड अपॉर्चुनिटी. बराबर. डिक्लाइन एंड अपॉर्चुनिटी यानी उसको रिजेक्ट करना. तो ये न्यू मीनिंग आपने डिराइव किया है. तो ये मीनिंग पास अप का मीनिंग क्या है? कि रिजेक्ट कर देना. बराबर. डिक्लाइन एंड अपॉर्चुनिटी. पास आउट का मीनिंग क्या है? कि अनकॉन्शियस हो जाना, बेहोश हो जाना, इज कॉल्ड एज अ पास आउट. तो आगे क्या बोल रहा है? फ्रेजल वर्ब्स आर यूज्ड मोस्टली इन स्पोकन इंग्लिश एंड इनफॉर्मल टेक्स्ट, बट दे आर लेस अप्रोप्रिएट इन फॉर्मल लैंग्वेज. जनरली आप जो इनफॉर्मल लैंग्वेज डे टू डे जब आप कम्युनिकेट करते हो तो उसमें यू कम अप विद दिस फ्रेजल वर्ब. जनरली दिस फ्रेजल वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन अ फॉर्मल लैंग्वेज.
If you are writing a formal document or an academic essay, try to avoid using phrasal verbs and use more formal and alternative instead. Phrasal verbs have to be learned because many of them are idiomatic. Idiomatic का मीनिंग जो है आगे we are going to study, मुहावरे की तरह आप यूज करते हो आपके phrasal verb को, and you cannot deduce their meaning. एक्चुअल मीनिंग नहीं आएगा, उससे कोई sarcastic meaning निकलेगा. Advantage of knowing phrasal verb: spoken English is literally packed with phrasal verbs. So if you want to communicate effectively, you must learn to use phrasal verbs. Moreover, phrasal verbs change the language and make it more friendly, easy to understand and easy flowing. Another advantage of knowing phrasal verb is that you can easily substitute a string long words. बड़े वर्ड्स को शॉर्ट में आप यहाँ पे यूज कर सकते हो. फ्रेजल वर्ब यूज करके बड़े सेंटेंसेस को शॉर्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो. दिस विल बी वेरी यूजफुल व्हेन यू आर मेकिंग अ प्रिसाइज नोट्स. बराबर. विद अ सिंगल फ्रेजल वर्ब, दिस विल मेक द कॉन्वर्सेशन नेचुरल एंड फ्लुएंट. इफ यू लर्न एटलीस्ट द मोस्ट कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब, यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर ओवरऑल फ्लुएंसी एंड अंडरस्टैंडिंग. तो देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप इनको यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश फ्लुएंट दिखेंगी, आप मास्टरी कर सकते हो अगर ये फ्रेजल वर्ब्स आप यूज करते हो. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए, विल जस्ट गो थ्रू दैट. लुक आफ्टर, तो इसका मीनिंग क्या है? टू टेक केयर ऑफ. माई मम लुक्स आफ्टर मी. माई मम लुक्स आफ्टर मी. बराबर. सेकेंड क्या बोल रहा है आपको? लुक इनटू. यहाँ पे क्या बोल रहा है? टू फाइंड आउट मोर अबाउट समथिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिचुएशन, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन. जनरली सीबीआई. एक यहाँ पे क्या वर्ड्स यूज, यहाँ पे सेंटेंस क्या बना सकते हैं? देखिए, सीबीआई इज आस्क्ड टू लुक इनटू द मैटर. CBI is asked to look into the matter. Then you have lookout. Lookout का मीनिंग क्या है? Lookout का मीनिंग है to be careful, cautious. That is called as a lookout. Then you have lookout का एक वर्ड बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं. सॉरी, I think I am ready to I think I am ready to look out after myself. Look out after myself. बराबर. तो ये हो गया आपका look out, to be careful for myself. Then you have look for. उसका मीनिंग क्या है? To search for something. Look through, to examine something. Look up, to search for information. Look up to respect or admire something. Look up to, किसी बड़े को देखना. Look up to, I generally look up to my father for this opportunity. Look away, to turn your eyes away from someone. गरीब से आपने आपकी नजर हटा ली. Look away. उसी तरह यहाँ पे bring से रिलेटेड फ्रेज दिए हुए फ्रेजल वर्ब्स. Bring about, bring something round, that means make him conscious again. So these are some of the important phrasal verbs they have given on page number 3.16 and 3.17 of your module. Just go through that and see to it. At least you read these phrasal verbs at least 10 times. Generally in examination they will ask all the questions related with phrasal verbs. All these phrasal verbs आप at least 10 times read करिए. एक exercise solve करते हैं and we will see to it. बराबर. अभी क्या बोल रहा है देखिए. Each sentences given below contains an incomplete phrasal verbs. Complete the expression by supplying a suitable preposition or adverb particle. Choose your answer from the option given in the bracket. क्या बोल रहा है देखिए. All Maria's relatives are of the opinion that she takes dash her grandmother. यहाँ पे आएगा takes after, और ये
क्या आएगा यहाँ पे, टेक्स आफ्टर। और ये फ्रेजल वर्ब का मीनिंग क्या है, रिजेंबल समवन, resemble someone. All Maria's relatives are of the opinion that she takes after her grandmother. यानी she looks like her grandmother. She resembles to her grandmother. Next क्या दिया हुआ है देखिए, the music is too loud. Could you turn the volume please? Could you turn back, turn down, turn up, turn down? Which word you are going to use? टर्न डाउन, यानी आप क्या वॉल्यूम को कम करोगे, कम करना, दैट इज कॉल्ड एज अ टर्न डाउन। देन यू हैव गेट क्विक, क्विक गेट डैश द बस और यू विल हैव टू वॉक होम। किसी चीज पे चढ़, दैट मीन्स गेट ऑन, गेट अंडर, गेट ओवर। तो यहां पे क्या आएगा, गेट ऑन। बस पे चढ़ना, बोर्ड करना, दैट इज कॉल्ड एज अ गेट ऑन। यहाँ पे किसी चीज पे आप प्रोग्रेस करते हो यानी आगे बढ़ते हो, तो बस पे आपको बोर्ड करना है, तो यू कैन कॉल इट एज बोर्डिंग, बराबर, गेट ऑन। वी विल टेक दिस इश्यू डैश व्हेन वी मीट नेक्स्ट वीक। वी विल टेक दिस इश्यू अप, issue up when we meet next week. Issue, that means important topic for discussion. इसको आप बोलोगे issue up. Then you have, I am afraid that we have run out of juice. Run out of juice, will you drink coffee? Run out of juice यानी run out का मीनिंग है short of supply, is called as a run out of और run out of juice. Will you drink coffee? तो यहाँ पे जूस खत्म हो गया, क्या आप कॉफी लोगे, बराबर। तो दिस इज हाउ यू हैव टू यूज अ फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, फ्रेजल वर्ब वो होता है वर्ब के अंदर अगर आप कोई प्रीपोजिशन या फिर कोई एडवर्ब अगर आप ऐड करते हो या दोनों भी ऐड करते हो तो उससे न्यू वर्ड तैयार होता है और एक न्यू मीनिंग जनरेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेजल वर्ब। नेक्स्ट व्हाट इट सेज, नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स। अब देखिए इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में दे हैव नॉट गिवन यू द ऑप्शंस, तो यू हैव टू यूज योर ओन ऑप्शंस। आप आपके ऑप्शंस यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्या बोला है देखिए, I thought the conference was going to be boring, but it dashed to be quite useful. But it dashed to be quite useful. क्या बोलेंगे यहाँ पे, but it turned out. But it turned out to be quite useful. He dashed the kitchen and made some coffee. He went into the kitchen, went into, or he came into. Either of the things you can use. Or came into. He came into the kitchen and made some tea. Next. The police have been looking for him since he dashed of the prison. Since he what? Prison से जब से वो भाग गया है. Since he, right word will be broke out of the prison. Then we left an hour earlier, but we drove so fast that we were able to dash with him. अब यहाँ पे एक करेक्शन आपको करना है. अर्लियर की जगह आपको यूज करना है वर्ड लेटर. वी लेफ्ट एन आवर लेटर बट वी ड्रॉव सो फास्ट दैट वी वेर एबल टू कैच अप विथ हिम. कैचअप, इतनी फास्ट हम लोग गए कि उनके साथ बराबर हमने कैचअप कर लिया.
The president asked the members of the cabinet to dash their letters of resignation to hand in. क्या आएगा यहाँ पे? hand in. अगर किसी को कोई चीज लेना है तो hand in, और किसी को सब बांटना है तो hand out. The president asked the members of the cabinet to hand in their letters of resignation. So this is how you have to use the phrasal verb. Next topic पे आते हैं. Collocations. मैंने आपको बताया collocations means two words collectively when we use. Generally those words are linked up together, husband and wife. बराबर. तो ऐसे कुछ वर्ड्स ऐसे जो जनरली साथ में आते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज अ कोलोकेशन. व्हाट इट सेज? अ कोलोकेशन इज familiar group of a collocation is a familiar grouping of words, especially words that habitually appears together. Habitually यानी generally they come together and thereby convey meaning by association. For example, we usually say heavy rain and not strong rain or big rain. Generally rain के साथ we use the words heavy. We don't use the word strong or big. Though it is grammatically correct, but we don't use those because वो सुनने में कुछ अजीब लगता है. तो उसके साथ कौन सा वर्ड जनरली जाता है? heavy rain. तो ऐसे वर्ड्स को you call it as, जो साथ में जनरली आते हैं, you call it as collocation. Even though they are grammatically correct, but both strong rain and big rain sound completely strange. If you use the normal collocation heavy rain, your English will sound a lot better and more natural. तो types of collocation कौन कौन से? noun के साथ noun, जैसे tea leaves, service industry, single entry, that camp. Noun plus verb. Dogs bark. Dog is a noun, bark is a verb. Water flows. Bears growls. Growls यहाँ पे growls यानी rough sound, that is called as a growling. Then pigs grunt, paper flutters, leaves rustles. तो flutters का meaning क्या है? flap the wing rapidly, उसको बोलते हैं आप flutters. और rustle का meaning क्या है? कि soft cracking sound, that is called as a rustle. Then you have adjective plus noun, जैसे कि high fever, burning sensation. Adverb plus adjective, completely satisfied, infinite simile small. Infinite simile small यानी extremely. इसका मीनिंग क्या है? Small. Meticulously studied. Meticulously का मीनिंग क्या है? Diligently और careful. होशियार अपन जो बोलते हैं ना जिसको, यू कैन कॉल इट एज मेटिकुलसली और डिलिजेंटली. और उसके अलावा आपके कॉलोकेशन वर्ब प्लस एडवर्ब से भी फॉर्म हो सकते हैं. परफॉर्म मैजिकली, sang melodiously and so on. तो these are some of the important collocations. उसके अलावा प्रॉफिट और लॉस, सिक्योरिटी ब्लैंकेट, डॉलर डिप्लोमेसी, ब्लैंक चेक, सर्विस चार्ज, annual turnover, sales figure, break the law, opinion poll, excise tax, cash flow. तो all these are collocations. क्या बोल रहा है आगे? How to read collocations? Read extensively while reading books, newspaper. We come across use of collocation that shows us the proper usage. Try and make different collocation. Check for few combinations. Always refer to good dictionary to look for collocation. Club words of category. For example, collocation related to time, distance, money, etc. तो यहाँ पे कुछ आपको एक्सरसाइज दी गई है. Come on, we'll try to solve this. और इस पे आप कुछ collocations ट्राई करते हैं कि कौन कौन से वर्ड यहाँ पे यूज हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है? सन. तो अब यहाँ पे कौन कौन से वर्ड आप लोग ऐड कर सकते हो? यहाँ पे ऐड कर सकते हो स्कॉर्चिंग, आप ऐड कर सकते हो ब्लड रेड सन, यू कैन ऐड ब्राइट सन, यू कैन ऐड ब्रिलियंट सन, यू कैन ऐड गोल्डन सन,
यू कैन ऐड येलो सन। उसके बाद आइस, यहां पे आप ऐड कर सकते हो ब्रेक द आइस। आप ऐड कर सकते हो क्रश, बराबर। तो यहां पे स्कॉर्चिंग सन आप ऐड कर सकते। स्कॉर्चिंग यानी एक जो बोलते हैं ना, बहुत ही आपको गर्मी लग रहा है, बहुत ही सन जो है आज एकदम स्कॉर्चिंग है, आपको एक पिन पॉइंट कर रहा है, तो दैट इज स्कॉर्चिंग। देन यू हैव ब्रेक द आइस यानी उसको क्रश करना, बराबर। मीटिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हो यहाँ पे, कॉर्डियल। कॉर्डियल मीटिंग, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, कॉर्डियल का मीनिंग क्या है, इनफॉर्मल। इनफॉर्मल है, रेगुलर है, स्केड्यूल है, स्केड्यूल मीटिंग। कंप्लीटली, रीड कंप्लीटली, बोलते हैं ना, रीड कंप्लीटली, राइट कंप्लीटली, अंडरस्टूड कंप्लीटली। पेन के लिए क्या यूज कर सकते हो, अनबेरेबल पेन, इतना पेन है कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ, अनबेरेबल। एक्सट्रीम पेन, एक्यूट पेन, बर्निंग पेन, शूटिंग पेन, क्रॉनिक पेन। फ्रीडम के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, कंप्लीट फ्रीडम, मैक्सिमम फ्रीडम, स्ट्रांगली। आप स्ट्रांगली नहीं यूज करेंगे, आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, इंजॉइंग फ्रीडम, बराबर। तो यहाँ पे फ्रीडम की जगह, फ्रीडम के पहले आप ये सब वर्ड यूज कर सकते हो। रूल के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, ब्रेक द रूल, स्ट्रिक्ट रूल। तो ये हो जा रहे हैं आपके कोलोकेशन, यानी ये साथ में जनरली ये वर्ड्स आते हैं और एक मीनिंग जनरेट करते हैं। देन यू हैव अ सिंपल रूल, मैक्स के सिंपल रूल, अबाइड बाय द रूल्स। अबाइड बाय द रूल्स यानी रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे रूल में ये यूज कर सकते हो। डिसीजन के लिए क्या यूज कर सकते हो, टफ डिसीजन और बिग डिसीजन, और यू कैन कॉल इट एज इंपॉर्टेंट डिसीजन, और यू कैन कॉल इट एज की और लैंडमार्क डिसीजन। ये आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। यूनिट के लिए आप यूज कर सकते हो आर्मी यूनिट, आर्मी यूनिट, सिंगल यूनिट, बेसिक, और you can call it as basic unit, then social unit, family unit। तो यूनिट में आप ये यूज कर सकते हो। विंड के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, ब्लोइंग विंड, और स्ट्रॉन्ग विंड। हैवी रेन था, वैसा विंड के लिए हैवी विंड यूज नहीं कर सकते हो, आप कॉल इट एज अ स्ट्रॉन्ग विंड। देन यू कैन कॉल इट एज फेवरेबल विंड, ये भी यूज कर सकते हो। देन यू हैव अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के लिए क्या है, डैश अ प्रेजेंटेशन, गिव अ प्रेजेंटेशन, और यू कैन गिव मेक अ प्रेजेंटेशन, मेक अ प्रेजेंटेशन, और एनुअल प्रेजेंटेशन, फॉर्मल प्रेजेंटेशन, इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। तो ये सब वर्ड्स आप यूज कर सकते हो विथ अ प्रेजेंटेशन। देन डैश एन आर्ग्यूमेंट, डैश एन आर्ग्यूमेंट, काउंटर एन आर्ग्यूमेंट, काउंटर एन आर्ग्यूमेंट, और क्लियर एन आर्ग्यूमेंट, बराबर, यहां यूज कर सकते हो आप। देन टाइम के पहले आप क्या यूज कर सकते, सेव टाइम और किल टाइम,
और spend time, waste time, free time. These words can be used with time. Then dash a meeting, close a meeting, chair a meeting. मीटिंग को आप ऑर्गेनाइज करो, that is chair a meeting. Burst into tears or burst into flames. So these are some of the example of important collocations. बराबर, तो ये है आपके collocations के examples. अब आते idioms. Idioms are generally मुहावरा, जिसको अपन बोलते हैं, मुहावरे आप यूज कर सकते हो. बराबर, और आपके जब राइटिंग स्किल्स प्रेजेंट करना है तो मुहावरे अगर आप यूज कर सकते हो तो जनरली यू कॉल केक ऑन द आइस. यानी एक प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा था लेकिन आपने एक जो एग्जांपल दिया दैट वाज अ केक ऑन द आइस. तो सच काइंड ऑफ इडियम्स आप आपके प्रोवर्ब्स आप आपके लैंग्वेज में, आपके राइटिंग या ओरल लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो टू गिव अ इफेक्टिव इंप्रेशंस. तो व्हाट दे हैव गिवन, an idiom is an expression. An idiom is an expression that takes a figurative meaning when certain words are combined, which is different from a literal meaning of its individual words. Obviously, वो words को अगर separate करेंगे तो उनके meaning कुछ और रहेंगे, लेकिन उनको जोड़ के आप एक bulk meaning derive करते हो, अलग meaning derive करते हो. Example: to beat black and blue, to head to a hard nut to crack. Beat black and blue बराबर, और hard nut to crack, इसका मीनिंग क्या है? To beat very badly to a very difficult problem or situation. Hard nut to crack यानी बहुत difficult है, solve नहीं हो रहा है. That is, आप instead of calling it hard problem, you can call hard nut to crack. किसी को बेदर्दी से मारना, you can call it as to beat black and blue. तो ऐसे हो गए आपके idioms. क्या बोल रहा है आगे? Idioms add flavor and style to the language. That means वो एक तड़के का काम प्ले करता है. Idioms अगर आपके लैंग्वेज में आता है, सिद्धू को आप देखते होंगे जब वो उसका कॉमेंट्री देता है, आपने सुना होगा, तो इतने ज्यादा मुहावरे बोलता है just to keep the reader or listener attentive, engage रखने के लिए वो ये जनरली मुहावरे यूज करता है. Right idiom used in the right place not only shows the user knowledge but also put forth the thought more convincingly. याद भी आने चाहिए ना, मुहावरे राइट प्लेस पे यूज करना भी एक इम्पोर्टेंट, एक आपकी एक यू कैन कॉल इट एक टैलेंट है कि अगर कोई आपको एक सिचुएशन दिख रहा है और उस सिचुएशन पे अगर आप कोई मुहावरा बोल देते हो तो समझ में आता है कि कितना टैलेंटेड पर्सन है. The important aspects is to know the idioms, their meaning, and use them often in language. Article writing, presentation, and even boardroom discussion need a good command over language, which can be possible with proper use of good vocabulary, idioms, and phrases. Let us have a look at a few idioms and their meaning. देखिए क्या क्या है, कुछ important idioms उन लोगों ने आपको बताया, आपको रीड पूरे करना है. बराबर. ब्लैक शिप, ब्लैक शिप यहाँ पे क्या बोला गया है? द ऑड वन इन द फैमिली. द यंगर सन इज द ब्लैक शिप इन द फैमिली. अ बेड ऑफ रोजेस, अ कंफर्टेबल लाइफ, जैसे अपन बोलते हैं ना, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यानी उसको सब सुविधा मिली है उसके लाइफ में. डू नॉट एक्सपेक्ट लाइफ टू बी अ बेड ऑफ रोजेस. टू बीट ब्लैक एंड ब्लू, अभी थोड़ी देर पहले देखा, टू बीट वेरी बैडली. टू ब्लो वंस ट्रम्पेट जनरली यूज होता है, टू ब्लो वंस ट्रम्पेट यानी खुद की तारीफ करते जाना. प्रेज वन सेल्फ. किट एंड कीन, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड. हार्ड नट टू क्रैक अ डिफिकल्ट थिंग और प्रॉब्लम. अ कोल्ड रिसेप्शन, अ कोल्ड रिसेप्शन यानी लेजी रिसेप्शन, अनवेलकम, इनडिफरेंट. लायन शेयर यानी बड़ा शेयर, यानी कोई भी प्रॉफिट में आप अगर आपका बड़ा शेयर निकाल लेते हो तो दैट इज कॉल्ड एज अ लायन शेयर. Other fish to fry, other important work to do. All and sundry, one and all and sundry यानी एक और बाकी सब. The minister invited all and sundry to his son's wedding, सभी को बुलाया, छोटे से लेके बड़े आदमी तक. Spike and span, clean, neat and organized. A square meal, complete meal. To take French leave, to take leave
uninformed. That is called as a French leaf. Man of straw, man of no substance. Don't believe your neighbor. He is a man of straw. यानी उसका कुछ वजूद नहीं है, उसकी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है. A bolt from the blue, an unexpected disaster. A fair weather friend, a friend only in good times. मामा जिसको अपन बोलते हैं काम पुरता मामा. तो ऐसे चीज यहाँ पे आपको इडियम्स दिए गए. जस्ट यू गो थ्रू दैट. एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. बराबर क्या बोल रहा है देखिए. आइडेंटिफाई द इडियम इन द गिवन सेंटेंसेस एंड डिटरमाइन द मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट. आई नो दैट द फाइट दैट दे हैड यस्टरडे सीम सीरियस बट दैट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. तो यहाँ पे आपको इडियम सबसे पहले तो पहचानना है कौन सा है. टिप ऑफ द आइसबर्ग इसमें एक इडियम है. बराबर इसके मीनिंग देखते हैं थोड़ी देर में. आई कॉल द सिक ऑल वीक. आई कॉल इन सिक ऑल वीक बिफोर द समर वेकेशन बट नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक. देन यू हैव Tara jumped on the bandwagon and got her ear pierced after all her classmates pierced their ears. Tara jumped on the bandwagon. तो यहाँ पे आपका idiom कौन सा है? Jump on the bandwagon. Then you have Tommy's mother did not even lecture him after he came home late. It was like beating a dead horse. यहाँ पे idiom कौन सा है? Beating a dead horse. Then you have when Mrs. Banerjee told the student that she was going to share the answer, they were all ears. They were all ears. बराबर they were all ears. उसके बाद while the boss was away, the two workers decided to shoot the breeze over a cup of coffee. Breeze over a cup of coffee. Dad wanted to let me off the hook, but Mom said he made his bed. Now he has to lie on it. अब यहाँ पे दो टाइप के idiom है. Dad wanted to let me off the hook, but Mom said he made his bed. Now he has to lie in it. बराबर. You knew there was no answer to this problem, yet you sent me on a wild goose chase. Wild goose chase. अब ये सब idiom से अब इसके मीनिंग जानने की कोशिश करते हो. बोल रहे आइडेंटिफाई द idiom in the given sentence and determine the meaning from the context. तो we have identified the idioms. Now we'll try to find out the meaning of this. अब यहाँ पे क्या बोला है? I know that the fight that they have yesterday seemed serious, but that just the tip of the iceberg. Tip of the iceberg. यानी only part in noticeable from a big problem. यानी ये तो सिर्फ एक झलक थी. प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है. ये एक झलक आपने देखी, इसकी असली लड़ाई आपने नहीं देखी. अपार्ट फ्रॉम बिग. आई कॉल्ड इन सिक ऑल वीक बिफोर द समर वेकेशन बट नाउ आई हैव टू फेस द म्यूजिक. फेस द म्यूजिक यानी अब मुझे उसके क्रिटिसिज्म फेस करने पड़ेंगे. टू फेस द क्रिटिसिज्म. Face the result or face the criticism. Tara jumped on the bandwagon and got her ear pierced after all her classmates pierced their ears. Jump on the bandwagon यानी to join a trend. सभी क्लासमेट्स ने अपने कान पियर्स करवाए तो इसने भी she joined the trend. Tommy's mother did not even lecture him after he came out home again. It was like beating a dead horse to waste time. Time and effort. Then you have when Mrs. Banerjee told the student
that she was going to share the answer, they were all ears, waiting eagerly to hear the answers. बराबर. उसके बाद while the boss was away, the two workers decided to shoot the breeze over a cup of, to shoot the breeze. आपका idiom क्या है यहाँ पे? To shoot the breeze. और इसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पे? शूट द ब्रीज का मीनिंग क्या है? टाइम पास और स्पेंड टाइम टॉकिंग समथिंग अनइम्पॉर्टेंट. ये हो गया आपका शूट द ब्रीज. देन देयर इज Dad wanted to let me hop the hook, but Mom said he made his bed. Now he has to lie on it. Hop the hook. इसका मीनिंग क्या है? Relief from responsibility. Relief from responsibility. But Mom said he made his bed. Now he has to lie in it. यानी suffer the consequences. Suffer the consequences. He made his bed, now he has to lie on it. उसको अब consequences खुद bear करने पड़ेंगे. You knew there was no answer to this problem, yet you sent me on a wild goose chase. That means इसका meaning क्या आएगा? A foolish activity. A foolish activity which is unattainable. यानी जिसका कोई भी फायदा नहीं था. आपको पता था कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, फिर भी आपने मुझे वो काम से लगा दिया. तो दैट इज कॉल्ड एज अ वाइल्ड गूस चेस. अब यहाँ पे लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड विद दिस विल कंप्लीट द सिलेबस. What it says, practical exercise, select the correct meaning of the idiom phrase given below. Born of contention. अब यहाँ पे पहले तो आपको मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ और यही मीनिंग अपन इसमें ढूंढेंगे. Born of contention यानी issue over which there is continuous disagreement. Issue of disagreement. क्या बोल रहा है देखिए. एरिया ऑफ एग्रीमेंट, ऑफ लीस्ट इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट इज अ करेक्ट आंसर. सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. बराबर. तो यहां पे क्या आएगा? सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. बॉर्न ऑफ कंटेंशन का आएगा सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट. सेकेंड है आपका रूल द रूस्ट. रूल द रूस्ट का मीनिंग क्या है? जिसपे आपका कंप्लीट कंट्रोल है, दैट इज कॉल्ड एज अ रूल द रूस्ट. तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट वर्ड टू डोमिनेट. बराबर क्या आएगा? टू डोमिनेट. जिसपे आपका पूरा कंट्रोल है उसको आप बोलोगे टू रूल द रूस्ट. नेक्स्ट है टू ग्रीज द पाम. पाम पे मस्का लगाना किसको बोलते हैं? ब्राइब देना. बराबर. टू ऑफर द ब्राइब. उसके बाद है स्टॉर्म इन टी कप. एक छोटी सी चीज का भवंडर क्रिएट करना, किरकिरी क्रिएट करना. दैट इज कॉल्ड मेक अ बिग इशू आउट ऑफ स्मॉल थिंग. दैट इज कॉल्ड एज अ स्टॉर्म इन अ टी कप. उसके बाद आते हैं लॉन्ग फॉर. लॉन्ग फॉर का मीनिंग क्या है? डिजायर. किसी चीज का डिजायर करना, यानी किसी चीज को देख लेना, किसी पर्सन को देखना और उसको लॉन्ग फॉर करना यानी डिजायर करना. देन पेन एंड इंक यानी लिखना. बराबर. इन राइटिंग. उसके बाद टेक आफ्टर यानी किसी को रिसेंबल करना. अ फार क्राई. फार क्राई यानी वेरी डिफरेंट. वेरी डिफरेंट.
दूर दूर तक मैच नहीं होना, दैट इज कॉल्ड एज अ फार क्राई। ऑप्शन चॉइस, ऑप्शन चॉइस यानी आपको ये चीज दी गई है, इसमें से ही आपको एक सिलेक्ट करना है, दूसरा आपके पास कोई चॉइस नहीं है, नो चॉइस एट ऑल, दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्शन चॉइस। देन यू हैव इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इन द पिंक ऑफ हेल्थ का मीनिंग क्या है? गुड हेल्थ, दैट इज बेस्ट ऑफ हेल्थ, बराबर। तो इन इडियम्स का ये मीनिंग है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी सेकेंड लास्ट, select the suitable substitute for the word in italic in the sentence given below. Ensure that the meaning of the sentence does not change. Lack of education has retarded the nation progress. Retarded यानी lack of education, एजुकेशन नहीं होने की वजह से देश की प्रगति रुक गई है। क्या आएगा? राइट वर्ड slacken, बराबर। The cream offers blemish free scheme result. The cream offers blemish का मीनिंग क्या है? फ्लॉलेस, बराबर। उसके बाद आते हैं द आर्मी कैप्टन वाज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट्यूमसली यानी मरने के उपरांत, मरने के बाद यानी आफ्टर डेथ। उसके बाद आते द मैजिशियन ट्रिक्स mesmerize the audience. mesmerize यानी चकित करके रख दिया। क्या आएगा? fascinated. Seeing the artist work with such finesse, the crowd cheered. expertise, finesse का मीनिंग क्या है? expertise, बराबर। उसके बाद आते the match was complete fiasco for the foreign team. fiasco यानी complete disaster, failure, बराबर। उसके बाद आते the demure actress has won the heart of the public. डीमर का जनरल मीनिंग है जो संकोच करता है, जो रिजर्व होता है। शाय, यहाँ पे करेक्ट वर्ड विल बी शाय, जो जनरली रिजर्व रहता है, शाय रहता है, उसे कहते हैं डीमर। हिज पेरेंट वेर एडमेंट अबाउट नॉट सेंडिंग देयर सन फॉर अ 2-day ट्रिप। एडमेंट का मीनिंग है स्टबन, स्टबन, एडमेंट का मीनिंग है स्टबन। तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड क्या रहेगा? इनफ्लेक्सिबल। जो जनरली जो जिसने दिमाग में भर लिया है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसे ही करेगा, वो सामने वाले की बात नहीं सुनेगा, उसे बोला जाता है एडमेंट, स्टबन, इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट इज अ स्लगर्ड वुड बी मिसफिट इन द आर्मी। स्लगर्ड, स्लगर्ड का मीनिंग है अ लेजी, जो कुछ चुस्ती नहीं है जिसमें, उसे बोलते हैं स्लगर्ड। Finishing the 10-page homework in 2 days is a tedious job, यानी tough job। तो ये सब हो गए आपके, you can call it as synonyms also। ये हो गए आपके synonyms। And with this, the last exercise of this particular chapter, what they are given. Fill in the blanks with most suitable option of the 2 new workers. Last exercise. Of the 2 new workers, one is experienced while the other is not experienced. तो यहाँ पे right word will be novice. The dash data collected is not helpful in any way to reach a conclusion. Data कुछ काम का नहीं था, तो यहाँ पे average, flexible, erratic, commendable. Right word is erratic, जो कुछ काम का नहीं है। erratic will be a right word, that is irregular, random, जैसा उठाया वैसा दे दिया, जो कुछ काम का नहीं है। It was quite humorous to see the dash minister talk about health and fitness issue. तो यहाँ पे rotund, corrupt, angular, quarrelsome। अब rotund का मीनिंग क्या है? fat and chubby। fat and chubby, तो यहाँ पे it was quite humorous to see the fat minister. right word क्या आएगा यहाँ पे? rotund, rotund minister। rotund का मीनिंग क्या है? fat and chubby। the dash rainfall in the desert region has led to a risk of famine। famine यानी जो बोलते हैं ना खाने, तो क्या बोला है? the
dash rainfall in the desert region and led to risks of famine. तो यहाँ पे scanty rainfall will be the right word. The sage is leading a dash life in the mountain. Sage का मीनिंग क्या है कि जो पर्टिकुलर पर्सन वाइज होता है उसे आप बोलते हो सेज. तो यहाँ पे क्या आएगा? स्पिरिचुअल लाइफ. स्पिरिचुअल लाइफ. देन यू हैव डैश अरेंजमेंट वेर मेड फॉर अ वेडिंग. यहाँ पे क्या आएगा? राइट वर्ड विल बी ऑस्टेंशियस. ऑस्टेंशियस का मीनिंग क्या है कि शोई, फ्लैम्बोयंट, बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया था. द म्यूजिक प्लेड इन द फंक्शन वॉज डैश. लॉट्स ऑफ पीपल वेर कंप्लेनिंग अबाउट इट. तो यहाँ पे मेलोडियस, डिस्ट्रक्टिव भी आ सकता है, लेकिन राइट वर्ड इज बॉइस्ट्रस. बॉइस्ट्रस का मीनिंग है बोल्ड, हैवी एकदम. तो यहाँ पे बॉइस्ट्रस यूज होगा. और उसके बाद आते हैं आप द डैश. टू डैश अ सीक्रेट इज नो लेस देन क्राइम देन लाइंग. टू डैश अ सीक्रेट. टू डैश अ सीक्रेट का मीनिंग यहाँ पे क्या आएगा कि किसी को अपना सीक्रेट डिस्क्लोज कर देना. That is called as divulge. So, to dash a secret is no less than crime than lying. That is to disclose the secret. तो यहाँ पे a disclose resembles divulge. Correct word will be to divulge a secret is no less than crime than lying. Disclose. Next is the study of coding, decoding involves various dash clues. The study of coding, decoding involves various dash clues. क्या आएगा करेक्ट आंसर? ऑब्वियस, क्रिप्टिक, हेल्दी, वर्बोज. तो करेक्ट आंसर विल बी ओवर हियर cryptic. And what do you mean by cryptic? Means puzzling, or you can call it as mysterious. The study of coding, decoding involves various cryptic clues. Puzzling होता है ना कोड डिकोड करने का. कोई छुपा हुआ लैंग्वेज में आपको कुछ ने किस लिखा है उसको डिकोड करने का, कोडिंग को डिकोड करने का, तो पजल होता है. तो यहाँ पे करेक्ट वर्ड विल बी cryptic. Then the last one, the rich businessman has donated a dash amount from his saving. A rich businessman has donated a colossal agrarian ultimate cowardly. यहाँ पे करेक्ट a big portion यानी उसके सेविंग से बड़ा पोर्शन उसने डोनेट कर दिया. तो राइट वर्ड विल बी अ कोलोजल. कोलोजल यानी अ बिग पोर्शन, बहुत बड़ा पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलोजल. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी कोलोजल. तो दीज आर द phrases, words that has to be put under these blanks. So with this we have completed the chapter. Just go through the entire chapter, very very important. Second chapter and third chapter is very very important. Just go through that, read all the phrasal verbs, read all the collocations. तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा. सफिक्स आपको रीड करना है, प्रीफिक्स आपको रीड करना है, रूट्स आपको रीड करना है. जनरली इसी में से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर स्कोरिंग द मार्क्स. तो दैट्स इट. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. इफ यू हैव एनी डाउट, बी फ्री, feel free to ask me. I am always available for you. Fine. Thank you so much. Bye everyone.